Let's see the physical properties of haloalkenes. First one is the solubility. So solubility of haloalkenes in water is low. Why? Let's see the reason. In order for a haloalkenes to dissolve in water, the energy is required to overcome the attractions between the haloalkenes molecule and break the hydrogen bond between water molecules. However, these haloalkenes are not able to form a hydrogen bonds with water, and therefore less energy is required when new attractions are set up between the haloalkane and the water molecules. And because these are not as strong as the original hydrogen bonds in water molecules, the solubility of haloalkanes in water is low. Next one is the density. So density increases with increase in number and atomic number of halogens. With the increase in number of carbon atoms, the densities go on increasing. The densities increases in the order. This is fluorine is less than chlorine, chlorine is less than bromine, and iodine has the highest density and fluorine has the lowest density. Third one is the boiling point. So in general, the boiling point of chloro, bromo, iodo compound increases with increase in the number of halogen atoms. So जितने ज़्यादा halogen atoms होंगे उतना ज़्यादा ही boiling point होगा chloro, bromo and iodo compounds का. For same halogen atom, BP is the boiling point. Boiling point of haloalkanes increases with increase in the size of alkyl group. अगर सेम हैलोजन एटम दिया है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कब इंक्रीज होगा? जब अल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा. अल्काइल ग्रुप मीन्स आर ग्रुप्स. मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड आर जनरली पोलर. Due to this polarity as well as the higher molecular mass as compared to the parent hydrocarbon, the intermolecular attraction like dipole-dipole, van der Waals attraction between the molecules are stronger in halogen derivative of alkanes. Next topic is the physical properties of haloarenes. अभी तक हमने physical properties of haloalkanes को देखा था. So these are generally colorless liquid or crystalline solids. मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी, आप लोग को समझ में आ जाएगा. These are heavier than water. Melting point of haloarenes are nearly the same as those of alkyl halides, containing the same number of carbon atom. जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट्स हैलोअरेन्स का भी इंक्रीज होगा. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन आर इन द ऑर्डर लाइक I is more greater than Br, Cl and F. So the boiling point of iodine is greater and boiling point of F is the lowest. For the same halogen atom, the melting and boiling point increases as the size of the aryl group increases. अभी तक haloalkanes में alkyl groups थे, अभी यहाँ पे aryl groups है. Let's see the chemical properties of haloalkanes. First one is the nucleophilic substitution reaction. Substitution reaction means हमें बस substitute करना है किसे? न्यूक्लियोफाइल को. So let's see, this is the nucleophile plus कोई भी अल्काइल हैलाइड. सो हमने यहाँ पे क्या किया? न्यूक्लियोफाइल को सब्सटीट्यूट किया और X को बाहर निकाल दिया. न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में दो मैकेनिज्म है, SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एग्जाम में आता ही है, कहीं ना कहीं से इसका थोड़ा तो भी टॉपिक आता ही है. सो हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे. सो SN1 क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और रेट इसका किस पे डिपेंड है? RX मतलब अल्काइल हैलाइड पे एंड न्यूक्लियोफाइल पे, मतलब इन दोनों पे इसका रेट डिपेंड है इन SN1 रिएक्शन. यहाँ हमें रेसमिक मिक्सचर मिलता है, वन स्टेप रिएक्शन है ये. और SN2 में क्या है? दिस इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और इसका रेट सिर्फ अल्काइल हैलाइड मतलब इस पे ही डिपेंड है, न्यूक्लियोफाइल पे इस पर इसका रेट डिपेंड नहीं है. यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन एंड ये टू स्टेप रिएक्शन है. सो हम इसे SN1 एंड SN2 को डिटेल में स्टडी करते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं. Let's see the mechanism of nucleophilic substitution reaction. In the first reaction, आप देख रहे हो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लिया है कोई भी, यहाँ से हमने फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें हैलाइड को निकालना है यहाँ से बाहर, तो हमने हैलाइड को बाहर निकाल दिया. फिर यहाँ पे क्या बना है? कार्बोकटायन इज फॉर्म
एज एन इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ द रिएक्शन। सो ये इंटरमीडिएट हो गया और ये कार्बोकैटायन है। सो अब हमें क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे अटैक करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर दिया। सो ये हो गई SN1 रिएक्शन जो कि 1 स्टेप में हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमने X को निकाला, हलाइड को निकाला एंड न्यूक्लियोफाइल को वहां पे ऐड किया। इन द SN2 रिएक्शन यहाँ पे 2 स्टेप्स है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, X को भी निकालना है और न्यूक्लियोफाइल को वही पे ऐड करना है, मतलब एक साथ ही करना है ये सब। यहाँ पे हमने पहले X को निकाला था, यहाँ पे वैसा नहीं करना है, यहाँ पे दोनों को सेम इसमें करना है, सेम टाइम पे करना है। और ये बैक से अटैक करेगा, एज यू कैन सी ये बैक से अटैक कर रहा है, ये नहीं कर रहा है बैक से अटैक। सो हमें ये इंटरमीडिएट मिल रहा है, मतलब दोनों एक साथ ही लग गए, मतलब X भी अभी निकलेगा और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल भी अटैक होगा साथ में। सो दिस इज द SN2 रिएक्शन और यहाँ पे नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। सो ये हो गई हमारी SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी वे से मैंने समझाया है और अभी मैं इसका डिफरेंस बताऊंगी आपको, सो इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरीन्स। लास्ट हमने देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्कीन्स। सो फर्स्ट इज डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में होता क्या है, ये है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहाँ ये बेंजीन है और यहाँ पे Cl लगा है, इसलिए वो क्लोरोबेंजीन हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड H+ वी गेट OH। हमने क्या किया, Cl को रिप्लेस करके यहाँ से OH को सब्सटीट्यूट किया और यहाँ से बाहर क्या निकला होगा, NaCl। यहाँ से NaCl बाहर निकला होगा। सो हमें मिला यहाँ पे OH। सेकेंड इज द विथ हैलोजेंस। सो अभी हैलोजेंस को ऐड करना है, सब्सटीट्यूट करना है। सो ये हो गया क्लोरोबेंजीन प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl। सो हमें 2 मॉलिक्यूल्स Cl के यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने। सो 2 प्रोडक्ट मिले हैं, यहाँ पे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन मिला है। 1,4 कैसे मैंने बोला है, यहाँ पे ये हो गया 1, 2, 3 एंड 4। 1 एंड 4 पे क्लोरो ग्रुप लगे हैं, दैट्स वाई मैंने कहा है 1,4 डाइक्लोरो। डाई इसलिए क्योंकि 2 है। ठीक है, और ये क्या हो गया फिर 1, 2 डाइक्लोरोबेंजीन। थर्ड इज विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब ये क्या हो रहा है, नाइट्रेशन हो रहा है, हमें नाइट्रेशन करना है, NO2 को सब्सटीट्यूट करना है। सो हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन in the presence of nitrating mixture. What is nitrating mixture? A mixture of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. आप याद रखना ये। सो हमें 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यहाँ पे मिल रहा है 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। 1 क्लोरो मतलब 1 फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो लगा है एंड सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो लगा है, दैट्स वाई 1 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। सेकेंड वन इज 1 क्लोरो एंड 1, 2, 3, 4 नाइट्रोबेंजीन। फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा, इसलिए हमने बोला है 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। और ये प्रोडक्ट मेजर है, ये हमें ज्यादा मिलेगा, ये माइनर प्रोडक्ट है। फोर्थ वन इज विथ मिथाइल क्लोराइड। ये हो गया मिथाइल क्लोराइड, CH3 मिथाइल एंड Cl क्लोराइड। सो हमें ये सब्सटीट्यूट करना है क्लोरोबेंजीन में in the presence of anhydrous AlCl3. So we get 1 chloro 2 methyl benzene. जैसे हमने यहाँ पे 1 क्लोरो 2 सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो लगाया था, सो यहाँ पे हमने लगाया है मिथाइल ग्रुप। सो ये हो गया 1 क्लोरो एंड 2 मिथाइल बेंजीन। ये क्या हो गया 1 क्लोरो एंड 4 मिथाइल बेंजीन। ये मेजर प्रोडक्ट है एंड ये माइनर प्रोडक्ट है। दीज आर द अदर कन्वर्जन्स। ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शंस है, जैसे अल्काइल हैलाइड RX प्लस KCl मतलब पोटेशियम साइनाइड। सो हमें क्या मिल गया, हमने सब्सटीट्यूट किया R के साथ Cl मतलब साइनाइड। सो हमें मिला अल्काइल साइनाइड प्लस KX मतलब पोटेशियम हैलाइड। और फोर्थ वन में देखिए आप RX अल्काइल हैलाइड प्लस Mg मैग्नीशियम हमने डाला है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सो हमें मिला RMgX। ये क्या होता है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ये मैंने इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने CO2 ऐड किया तो हमें मिला RCOOH। सो
हमारा हेलो अरीन्स एंड हेलो अल्केन्स ये भी चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। थैंक यू।